Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English pedagogy. It's very useful question for all teaching exams. So let's start. First question: remedial teaching is means first है for bright student to score better. Second है to help the needy pupils to get right of their specific weakness. And third है for very poor children who cannot afford going to school. And fourth है none of the above. So remedial teaching is means to help the needy pupils to get rid of their specific weakness. Okay, right answer is second. Next question: the pupils requiring remedial teaching may be suffering from A है poor memory, B है poor attention span, and C है relatively poor comprehensive power, and D है all of the above. Okay, तो the pupil requiring remedial teaching may be suffering from is poor memory, poor attention span, relatively poor comprehensive power. All of the above is right answer. Right answer is 4. Next question: a class second student does not mix up with other learners, does not talk much, and hesitates to reply whenever teacher asks him a question he needs. तो ए इसमें एक्स्ट्रा अटेंशन इन द क्लास. सेकंड है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स. थर्ड है रिमेडियल टीचिंग. फोर है ऑल ऑफ द एबव. ओके, अ क्लास सेकंड स्टूडेंट डज नॉट मिक्स अप विथ अदर लर्नर्स, डज नॉट टॉक मच, एंड हेस्टिटेट्स टू रिप्लाई वेन एवर टीचर आस्क्स हिम अ क्वेश्चन ही नीड्स इज रिमेडियल टीचिंग. राइट आंसर इज थर्ड. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ remedial teaching is English language is A है to develop good habits in pupils. Second है to solve educational difficulties and flaws. Third है to remove pupil weaknesses, and fourth है none of the above. The main objective of remedial teaching in English language is to solve educational difficulties and flaws. Right answer is second. Next question: which statement is not correct? Okay, so first है the teacher who is providing remedial teaching must understand the learner strength and weakness. Second है pupils needing remedial teaching are temporarily low academic achievers. Third, the pupils needing remedial teaching are generally talented learners. And fourth है remedial teaching help learner to develop positive attitudes. Okay, तो इसमें जो होगा which statement is not correct is, इसमें जो करेक्ट नहीं है वो कौन सा है. तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कि द प्यूपिल नीडिंग रिमेडियल टीचिंग आर जनरली टैलेंटेड लर्नर्स. तो ये गलत है. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड हो जाएगा. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ओके, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. फर्स्ट है फ्रेंड इसमें टीचर शुड अडॉप्ट द करिकुलम टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल. सेकंड है टीचर्स मस्ट अडॉप्ट स्ट्रेटजी टू मेंटेन द लर्नर इंटरेस्टेड एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग रिमेडियल टीचिंग. थर्ड है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग. एंड फोर्थ है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग. तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इज बोथ स्टेटमेंट first and second are correct in context of remedial teaching. Right answer is 4. आगे देखते हैं मिस्टेक्स. ओके, मिस्टेक्स इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी. ए है टेकन सीरियसली. सेकंड है इलिमिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. थर्ड है इग्नोर्ड. एंड फोर्थ है डिस्कस विद पेरेंट्स. ओके, मिस्टेक्स इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी इज इलिमिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. राइट आंसर इज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रिमेडियल टीचिंग. ए है इंस्ट्रक्शनल. सेकंड है निगेटिव. थर्ड है इम्परेटिव. एंड फोर्थ है थियोटिकल. ओके, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रिमेडियल टीचिंग. तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रिमेडियल टीचिंग, तो इसमें होगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा. ओके, कि इंस्ट्रक्शनल वर्क इज अ रिमेडियल टीचिंग. ओके, इंस्ट्रक्शनल वर्क इज अ रिमेडियल टीचिंग. राइट आंसर इज फर्स्ट. आगे देखते हैं फ्रेंड. वीना इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द वर्ड्स मैम लाइक मीम. ओके, तो व्हाट विल यू डू. तो ए फर्स्ट है नथिंग बिकॉज सी हैज़ नॉट बीन करेक्टेड सिंस हर चाइल्डहुड. सेकंड इट मे बी हेरिडिटी एज पर डॉल्सन एक्सपेरिमेंट. थर्ड है सी इज़ नॉट ए विलिंग लर्नर. एंड फोर्थ है द टीचर विल अरेंज रिमेडियल क्लासेस फॉर हर. ओके, तो राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा. द टीचर विल अरेंज रिमेडियल क्लासेस फॉर हर. ओके,
आगे देखेंगे दी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम एम्स टू, ओके, दी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स एम्स टू। तो इसमें जो फर्स्ट है फ्रेंड वो क्या होगा, फर्स्ट क्या है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर। सेकंड है इसमें इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव। थर्ड है लीव द लर्नर ऑन हिज ओन। एंड फोर्थ है हेल्प द लर्नर टू वर्क ऑन देयर पोटेंशियल्स, ओके। तो दी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम एम्स टू help the learner to work on their potentials. Right answer is 4. Next question, which of the following is the base of remedial teaching? First है self examination test, second है textbook test, third है diagnostic test and fourth है aptitude test, okay। तो इसमें जो right होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा कि which of the following is the base of remedial teaching is diagnostic test। Right answer is third। Next question, which one of the following is not a principle of helping pupil with learning difficulties? ए है डिवाइसेस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़, सेकंड है प्रोवाइड होम ट्यूशन टू लर्नर्स, थर्ड है कलेक्टिंग और डिज़ाइनिंग मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन एंड फोर्थ है टीचिंग प्रिपरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल विथ लर्निंग डिफिकल्टीज इज प्रोवाइड होम ट्यूशन टू लर्नर, ओके। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेटिंग विद पेरेंट्स वाइल लर्नर इज अंडरगोइंग रिमेडियल टीचिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ए है एग्री, सेकंड है डिसएग्री, थर्ड है कैन नॉट से एंड फोर्थ है समटाइम्स, ओके। तो कोऑर्डिनेटिंग विद पेरेंट्स वाइल लर्नर इज अंडरगोइंग रिमेडियल टीचिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम इज समटाइम्स। राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं, रिमेडियल टीचर्स मस्ट डू कोऑपरेट विद जो है रिलेटेड प्रोफेशनल्स टू seek professional support with a view to help pupil solve their problem, okay। right answer is first। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि एज पार्ट ऑफ ए क्लास प्रोजेक्ट अ टीचर प्लान्ड अ सैलड फूड्स सेलिब्रेशन डे इन विच ऑल लर्नर नीडेड टू पार्टिसिपेट। द बॉय प्रोटेस्टेड एज दे फॉल्ट दैट बॉयज डू नॉट कुक। द टीचर शुड फर्स्ट है मेक एन अटेम्प्टेड टू काउंसिल द बॉयज impressing upon them that gender stereotyping is not healthy. Second, respect the sentiments of the boy and allow them not to participate in the class project. Third, ignore such protested and tell the boy what she thinks of their biases. And fourth, complain to the head of the school seeking action against the boy, okay। तो as part of a school class project a teacher planned a salad food celebration day in which all learners needed to participate. The boys protested as they felt that do not cook. The teacher should is make an attempt to counsel the boy impressing upon them that gender stereotyping is not healthy। right answer is first। आगे देखते हैं, रिमेडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, ओके। फर्स्ट है डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप इन लर्निंग, सेकंड है टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, थर्ड है एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स एंड फोर्थ है टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, ओके। तो रिमेडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप इन लर्निंग। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ए है कंपटीशन, सेकंड है इनवे, थर्ड है सिंपैथी एंड फोर्थ है कोलैबोरेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव क्लासरूम तो ए है कंपटीशन, ओके, एंड सेकंड है इनवे, थर्ड है सिंपैथी एंड फोर्थ है कोलैबोरेशन। तो राइट आंसर इज 4 हो जाएगा कोलैबोरेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमेडियल टीचिंग फर्स्ट है फिल्स द गैप दैट क्रिप्स इनटू ए प्यूपिल लर्निंग, सेकंड है रेस्टिफाइज द कॉन्सेप्ट विच हैव बीन मिसअंडरस्टूड, थर्ड है हेल्प इन रिटेनिंग homogeneity in the class and fourth है all of the above, okay। तो remedial teaching is fill the gap that creeps into a pupil learning, okay। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, remedial teaching is a part of ए है formative assessment, summative assessment, class test, all of the above। तो remedial teaching is a part of all of the above, okay। मतलब formative assessment, summative assessment, class test, all of the above is right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। फीडबैक इज ए है फर्स्ट है एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, सेकंड है पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, थर्ड है द एंड ऑफ ए टीचिंग प्रोसेस, फोर्थ है यूजलेस एक्टिविटी। तो कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग करेक्ट अल्टरनेटिव इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। राइट आंसर इज सेकंड। रिमेडियल टीचिंग रेफर टू टीचिंग इज फर्स्ट है टू हेल्प ब्राइट लर्नर टू एक्सेल, सेकंड है टू टेस्ट लर्नर पीरियडिकली एंड थर्ड है टू एड्रेस गैप इन लर्निंग एंड फोर्थ है आफ्टर द रेगुलर स्कूल
hour. Okay, तो remedial teaching refers to teaching is to address gaps in learning. Right answer is third. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दी कंटेम्प्रेरी टारगेट लैंग्वेज क्लासरूम इन अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरिड लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एबिलिटी. टीचर्स शुड रीस्ट्रक्चर देयर प्रैक्टिस बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू. फर्स्ट है समराइजिंग एंड सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द लर्निंग मटेरियल, दैट इज स्टोरी, ग्रामर, नोटिस एटसेट्रा. सेकंड है वर्कशीट्स with a variety of tasks which cover the syllabus and student give the responses in class under teacher guidance. Third है इसमें appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment, opportunity for all students to explore idea and gain mystery. And fourth है educate self explanatory notes either prepared by teacher or from material writer. Okay, so the contemporary target language classroom is a conference of varied language and language ability. Teachers should restructure their practice by exposing students to appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment, opportunity for all students to explore idea and gain mystery. Right answer is third. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट टू पीपल हु लैक फॉर बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट इन स्कूल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स. ओके, तो फर्स्ट है गिविंग मोर एक्टिविटी फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस. सेकंड है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नोट एंड कोचिंग. थर्ड है अलाउइंग देम टू कंप्लीट असाइनमेंट एंड विदाउट टाइम लिमिट. एंड फोर्थ है इनिशियली अडॉप्टिंग स्कूल करिकुलर जो है करिकुलर एंड टीचिंग स्ट्रेटजी. ओके, तो प्रोवाइडिंग लर्नर सपोर्ट टू पीपल हु लैक फॉर बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट इज द school performance include is initially adopting. Okay, initially adopting school curricular and teaching strategy. Right answer is 4. आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द लर्नड नॉलेज दैट इन वर्ड प्रॉब्लम. द स्टूडेंट ऑल्सो फॉल्स टू ट्रांसलेट सेंटेंस इनटू equations or identify the variables. A possible solution to the problem could be. तो ए फर्स्ट है इसमें allowing more time to complete the same activity. सेकंड है कि giving only simple assignment to boost their confidence. थर्ड है pairing him her with high achievers. and fourth है giving carefully designed assignment, simple complex. Okay, giving carefully designed assignments simple complex. right answer is 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. टीचर कैन रिमेडिएट फॉर द स्टूडेंट विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्ट बाई फोकसिंग और इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन. ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि स्लो लर्नर फेल टू गैप एक्टिविटीज इफेक्टिवली. स्लो लर्नर फेल टू गैप इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड एंड स्ट्रक्चर इजली. टीचर कैन रिमेडिएट बाई बिगनिंग विथ. ओके, तो ए है सेटिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस. सेकंड है पेंटिंग देम विथ क्लेवर स्टूडेंट्स. Okay, and third है identify the areas of difficulty. and fourth है preparing a summary of the content. Okay, तो right answer जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा कि slow learner fail to grasp effectively and mix up word and structure easily. Teacher can remediate by beginning with his identifying the area of difficulty. right answer is third. next question. Individualized educational program with intensive support to help students to consolidate their basic knowledge is referred to as first है advanced study program. second है introductory courses. third है remedial coaching. and fourth है revision sessions. okay, right answer is third, remedial coaching. okay, आगे देखते हैं. role play should be an integral part of every language classroom because तो it enables student to engage in meaningful talk. okay, right answer is third. आगे देखेंगे. child in class second writes. okay, child in class second write I like to read a book instead of writing. I like to read a book. what does the child writing show? तो ए है फ्रेंड. फर्स्ट है he needs remedial class to improve spelling. second है he has used invented spelling. third he is not paying any attention in the class. and fourth he needs to work on phonetics. okay, तो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा. he needs remedial class to improve spelling. okay, spelling. okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट डेमोस्ट्रेट देयर इफेक्ट प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड एन। इज कॉल्ड एन। फर्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, सेकंड पोर्टफोलियो, थर्ड है चेकलिस्ट एंड फोर्थ है रेटिंग स्केल। राइट आंसर इज सेकंड, पोर्टफोलियो। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिविंग इफेक्टिव फीडबैक टू दी लर्नर मीन्स। तो गिविंग इफेक्टिव फीडबैक टू दी लर्नर मीन डायग्नोसिंग प्रॉब्लम एंड गाइडिंग इन लर्नर हाउ टू इम्प्रूव। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिटी। ओके, identify. So a diagnostic test in English will help the language teacher to identify. तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें इंटेलिजेंट लर्नर इन हर क्लास, सेकंड है स्लो लर्नर इन हर क्लास, थर्ड है लर्निंग डिफिकल्टी द लर्नर फेस इन इंग्लिश एंड फोर्थ है द टॉपिक विच द लर्नर हैज़ नॉट लर्न बाई हार्ट। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी द लर्नर फेसेस इन स्कूल फेसेस इन इंग्लिश। ओके, लर्निंग डिफिकल्टी द लर्नर फेसेस इन इंग्लिश। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।